विल सी हमारा लाइव इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। केवी हट्टी वॉज लाइव, ये आ रहा है इसके अंदर 19 आवर्स के बाद में आ रहा है। जस्ट वी विल सी। KV ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ? KV ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ Okay, sir, this is our dashboard. In our Kendriya Vidyalaya Hatti, we have only 80 seats. Yeah. But for that 80 seats, we receive 103 applications. Okay. And in this 103 applications, we receive 71 RT applications, 7 single girl child applications, and EWS or BPL 46. Okay. So in category wise, we receive 48 application for 80 category 1. And for category 2 nil, category 3 nil, category 4 13 seats. Okay. For category 6, that is civil students, we receive 42 applications. Application by caste general, we receive 17. OBC creamy layer 6, OBC non creamy layer 45, SC 22 or ST 13. For male female 53 male and 50 male and 50 फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, ये डे वाइज रिकॉर्ड है कि कितना एप्लीकेशन हम लोगों ने कब रिसीव किया ऑनलाइन। अब इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आर लॉटरी डेमो, कि हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर अ लॉटरी डेमो, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसीजर वी आर डूइंग फॉर दैट ना। तो इन अ लॉटरी डेमो वी कैन एक्चुअली वी ऑल्सो डू इन द सेम सीक्वेंस। सो दीज आर द डेमोज। डेमो मीन्स कि first of all we have to conduct the RTE lottery demo, then after that single girl child, then after that SC ST OBC differently abled, then after that service 1 category lottery, then other categories 1 2 3 4 so on. So demo we can use it as many time as the parents request, but actually only we can do for a one time only. For that we are given slot of 10:30 to 11:30. Okay. So I just show you what is the actual demo, what are the sequence we have to follow that. So for RT or lottery, we have to click on that demo. These are the demo applications. Okay, because we are using the conducting lottery demo. So these are the pre-sequence number, means we receive first application. The pre-sequence number is 1. Okay, name is rider. That is a demo. Second application usher, so on. So when we conduct a lottery, we have to click that button. When we click that button, then they are asked whether all parents can understand that you are doing the correct process or not. If you said sir नहीं अभी मुझे समझ में नहीं आया, please दोबारा से समझा दीजिए, then we have to cancel that, otherwise we have to okay. तो we have to press okay. If all are satisfied, हाँ sir okay, applications है सब pre-sequence, post-sequence number, then we have to click okay. When we click OK, you just know that ki the sequence will be changed. These are the pre-sequence number. These are the post-sequence number now. Post-sequence, now this student has pre-sequence number 173, but after conducting a lottery, he got number 1. So we call by this. Okay, for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then after that, we can put our students in a waiting list. Okay, for RT lottery we have 20 seats. So first 20 we call the parents first. After that, अगर they are denying कि मुझे admission नहीं चाहिए, we can call the 21st. Okay, similarly this is a RT lottery. Then we have to be click on export to PDF.
एंड वी हैव टू बी टेक द प्रिंट आउट एंड टेक द सिग्नेचर ऑफ योर जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनका लेने के बाद में। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सबसे ये है दैट इज़ अ प्री सीक्वेंस नंबर एंड पोस्ट सीक्वेंस नंबर्स। सो अब यहाँ पर जो हमारे पास बच्चा था जिससे 7 था उसका भी 152 आ गया, इस तरीके से चेंज है, इंटरचेंज है। सो सिमिलरली आफ्टर कंडक्टिंग आर टी लॉटरी वी हैव टू कंडक्ट द सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी सेम इसी तरीके से कंडक्ट करना है। ओके करेंगे देन वी विल कॉल अ पेरेंट्स बाय दिस पोस्ट सीक्वेंस नंबर जो आएगा हमारे पास, पोस्ट लॉटरी नंबर जो है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है SC/ST का, SC ST OBC सभी का कंडक्ट करने के बाद में वी हैव टू कंडक्ट फॉर द कैटेगरी 1 लॉटरी। कैटेगरी 1 लॉटरी वी ऑल्सो कंडक्टेड। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ इसके अंदर आ जाएंगे, उनका प्री सीक्वेंस नंबर पोस्ट सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। तो इसमें से वी विल डू दैट। ओके, वी विल कॉल पेरेंट्स बाय पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस नंबर। आफ्टर दैट अदर जो कैटेगरी है हमारे पास सर्विस कैटेगरी, उनको कैटेगरी 2 के लिए कैटेगरी 3, 4, 5, 6 सो ऑन जितना हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, और उनका PDF वी हैव टू डाउनलोड एंड वी हैव टू बी साइन इट। आपके सबके साइन हो जाएंगे उस पर, और देन वी विल प्रिंट आउट एंड ED सर के साइन लेके देन वी हैव टू पोस्ट इट ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, और गेट पे भी लगा देंगे। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 80 था, RT में 20 सीट्स चला गया, उसमें हमारा स्पीकर सेक्शन के बच्चे आ जाते हैं, है ना, और 10 आपका स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा क्या होता है, 10 सीट्स 5 पर सेक्शंस। तो वो हम कोशिश करेंगे सर से पूछ के, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उसमें से कंपनी के, जैसे कि हमारे पास थे बच्चे, मान लीजिए 48 आए हमारे पास डैशबोर्ड में ना, एप्लीकेशन ये आई है हमारे पास आपकी कंपनी की 48 एप्लीकेशन। इन 48 एप्लीकेशन में से सर चाहें तो किसी को भी 10 बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं, उसको हम अंडर सीक्वेंस कोटा ही दे देंगे। तो 10 वो चली जाएंगी, बाकी फिर जो रिमेनिंग बचेंगे वो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू डू दैट। तो वो जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के आपकी सीट्स हैं उस पर हम सर से नाम ले लेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, अभी इसमें से देख लेंगे, देखने के बाद में जो टॉप के आपके कैटेगरी 1 की जब हमने लॉटरी निकाला है यहाँ पर कैटेगरी 1 का, इसमें जो बच्चे पहले आ जाएंगे उनको आपको दे देंगे, तो बाकी वाले जो आपके कंपनी वाले होंगे उनको भी मिल जाएगा, सीट्स मिल जाएगा। ओके, सो दैट प्रोसेस वी हैव टू बी फॉलोड। सो बिकॉज द टाइम इज 10:30 to 11:30, वी हैव टू कंडक्ट लॉटरी ओनली इन दिस टाइम ना। अगर आप सेटिस्फाई हैं देन वी कैन स्टार्ट दैट प्रोसेस। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू गो दैट फॉर लॉटरी। फर्स्ट वन इज RT लॉटरी। When we click on that RT lottery, they said, अभी आपको यहाँ पर टाइम भी आ जाएगा, the lottery operations can be performed between 10:30 to 11:30 on 26. Number of sections we receive 2, और total number of RT seats available हमारे पास 20 है। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं कंडक्ट, अभी हमारे पास मोहम्मद आहिल अली, इनका प्री सीक्वेंस नंबर 1 है। इसी तरीके से सैयद अहमद हुसैन, इनका नंबर 2 है। ठीक है, अगर आप किसी को एकदम देखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए वैभव पाटिल है, इसका 7 है प्री सीक्वेंस नंबर। अब हमें पता नहीं है कि ये आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ लॉटरी इसका नंबर क्या बनेगा, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं वाकई ये वैभव पाटिल ही है क्या। इस पर क्लिक किया तो ये वैभव पाटिल का एप्लीकेशन हमारे पास है। ओके, तो ये एप्लीकेशन हमारे पास वो आ रहा है पूरा, तो इसको हम देख सकते हैं प्रीव्यू करके। ये एप्लीकेशन नंबर किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो कोई पेरेंट कभी बोल सकता है कि सर इस पर क्लिक करके बता दीजिए ये मेरी एप्लीकेशन ही है या नहीं है। तो हम जैसे मिथुन है कोई बच्चा जिसका प्री सीक्वेंस नंबर 21 है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये मिथुन का एप्लीकेशन आया वो बच्चे का। ओके, किसी और का एप्लीकेशन नहीं है, उसी बच्चे का प्रीव्यू में एप्लीकेशन आया है। आफ्टर दैट इसको करने के बाद में ये हमारे पास टोटल जितना भी एप्लीकेशन था, कोई बात नहीं इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा ना। सो ये हमारे पास जितना भी एप्लीकेशन आया RT का टोटल, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आई थिंक 71 आया हुआ एप्लीकेशन। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं डैशबोर्ड में हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 71 था RT के अंदर। तो 71 में से 20 आना है, 20 को सीट्स ही मिलेगा। तो फॉर दैट वी आर कंडक्टिंग लॉटरी फॉर द RT। तो अगर आप बोलते हैं तो आई विल क्लिक दैट बटन बिकॉज इट विल बी क्लिक ओनली वंस, एक बार ही क्लिक होगा सिर्फ। Okay, so conducting RT lottery, then they said कि if parents are satisfied you have to click the OK button, otherwise you have to once again tell the parents, and if they are satisfied then you have to be click the OK buttons. Okay, now
नाउ वी सी दैट द सीक्वेंस नंबर हैविंग 30, नाउ इट गॉट द फर्स्ट लॉटरी सीक्वेंस पोस्ट सीक्वेंस नंबर्स। ओके, सिमिलरली दिस, सो 71 बच्चों का शफल हो गया है और 20 तक आप चेक करेंगे, 20 तक तो आ रहा है हमारे पास ये अभी बच्चों का, अदरवाइज ये बोल रहा है वेटिंग लिस्ट है। अगर ये डिनाई करते हैं देन वी विल मूव टू द 21st, 22nd, 23rd एटसेट्रा। सो वी कैन डू दैट। अभी इसका हम लोग करेंगे डाउनलोड कर लेंगे इसको हमारे पास आरटी लॉटरी को, और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे एज अ एक्सेल फाइल। सो इन दिस मैनर वी कैन कंडक्ट आरटी लॉटरी। सो अभी हमारे पास पीडीएफ आया, इसको हम लोग अभी प्रिंट आउट निकालने के लिए वहाँ पर दे देंगे, दे विल टेक द प्रिंट आउट, एंड अगर आपके हैं तो आपके साइन करवा लेंगे। ओके, इन सिमिलर मैनर, बिकॉज नाउ वी कैन नॉट अगेन कंडक्ट दैट आरटी लॉटरी, it will conducted only once. Now we are conducting the single girl. RT lottery is conducted. Now we are differently abled single girl child का जो है हमारे पास है second lottery. तो no application received in this category because उसमें हमारे पास जो differently abled है उसमें कोई आया ही नहीं है, और single girl child का तो वैसे नॉर्मली हमारे पास हो जाता है बच्चों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Then we have to be differently abled ST. अब उसमें कोई नहीं था तो वी कैन नॉट कंडक्ट एनी लॉटरी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड एसटी के लिए, तो उसमें भी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं था। देन उसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इस पर भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ। डिफरेंटली एबल्ड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं था, इसलिए जनरल में भी कोई नहीं है। तो देन आफ्टर वी विल मूव टू द कैटेगरी 1। ओके, वी विल सर्विस 1 कैटेगरी, वी हैव टू कंडक्ट दैट लॉटरी। So similarly in this manner they said कि lottery can be performed in the total number of seats are these, total number of sections are these, total number of RT differently able और ऐसे की कोटा, these are included 20 plus 10, these are 30। जैसे अभी आपको बताया था कि आपका कंपनी का 10 सीट्स होता है स्पॉन्सर एजेंसी कोटा का, RT का 20 निकल गया, तो 50 में से 80 में से 30 निकल गया है। हाँ, तो ये बताता है RT का 20 सीट्स रिजर्व है, और डिफरेंटली एबल का कोई सीट्स हमारे पास, क्योंकि कैंडिडेट ही कोई नहीं आया तो इसलिए कोई भी नहीं है, और आपका स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा का 10 सीट्स है। ओके, तो कैटेगरी में ये हमारे पास हो गया। उसके बाद में अगर आप कहते हैं तो ये कैटेगरी 48 बच्चे की एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास कंपनी 1 की, और ये इस तरीके से है 48। अब 48 में आप देखना चाहते हैं तो इसमें ये प्रणव गौड़ा पाटिल जो है इसका सीक्वेंस नंबर 1 है, बट कंडक्टिंग लॉटरी के बाद में अभी क्या आता है वो हम नहीं जानते, तो इसको कंडक्ट कर दे कैटेगरी 1 को। ओके ओके, नाउ अगेन यू सी कि 26 नंबर पे जो बच्चा था प्री सीक्वेंस नंबर का, उसका नंबर 1 आया अभी विशाल नाम से। ओके, देन सो ऑन, सुनिधि है, सुमिति है, तो फर्स्ट वी विल कॉल दीज पेरेंट्स। ठीक है, सीक्वेंस में है, बिकॉज इसमें आप कहीं पर भी वेटिंग लिस्ट नहीं देखेंगे, बिकॉज आपके सारे बच्चे हैं तो सारे बच्चे आ जाएंगे। अब 48 एप्लीकेशन थी, बट इसमें कुछ एप्लीकेशन हमारे को कम दिख रही हैं, आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों का आरटी में हो गया हो ऑलरेडी। ठीक है, तो उनका यहाँ नहीं शो करेगा, है ना, इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कंडक्ट हो गया। इसका हम लोग इसमें कर सकते हैं डाउनलोड लॉटरी लिस्ट, इसका कर लेते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट एज अ एक्सेल कर लेते हैं इसको। ओके, सो ये हमारे पास आ गया, इसको हम कर सकते थे। अब ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। विशाल नाम का जो बच्चा है उसके फादर को हम पहले कॉल करेंगे कंपनी से, या अगर हम लोगों ने इसमें से पहले 10 बच्चे निकाल लिए, वो सर को ईडी सर से बोल देंगे, सर ये 10 बच्चों ने तो लेना ही है, तो उसका ऐसे क्यों में कर देते हैं, बाकी वाले पेरेंट्स जो पीछे हैं उनका भी नाम आ जाएगा फिर। तो ये 10 की लिस्ट हम ऐसे के कोटा बना के सर से साइन करवा लेंगे फिर, है ना। तो ये कंपनी वालों का हो गया हमारे पास। कैटेगरी 2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी 2 में हमारे पास कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ। इसी तरीके से कैटेगरी 3 के अंदर भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है। कैटेगरी 3 के बाद में वी हैव टू बी अगेन चेक फॉर द SC कैंडिडेट्स, बिकॉज कैटेगरी 1, 2, 3 ये पहले करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू कंडक्ट द SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर लॉटरी। तो अभी ये सब हमने ऊपर से कर लिया, अभी वी हैव टू कंडक्ट द SC लॉटरी। अब SC में एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 22। अब 22 में अब कहता है कि यहाँ पर हमारे पास KVS वार्ड तो है नहीं कोई, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 2 थे, तो 2 सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ SC सीट्स हमारे पास होता है 12। दीज आर रिजर्व सीट्स। ओके, तो ये हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है दीज आर द 22। अब हमें ये नहीं पता कि इस SC कैंडिडेट में से कितने बच्चे RT में हो गए हैं, तो वो ऊपर से माइनस हो जाएंगे तब। ओके,
तो ये रिजर्व सीट्स अगर देखते हैं कितना है हमारे पास, क्योंकि 22 में से 12 बच्चों को ही एससी कैटेगरी के अंदर सीट्स देंगे। उसी में हो सकता है कंपनी वाले बच्चों में भी चला जाए, कैटेगरी 1 में भी चला जाए, आरटी में भी चला जाए। तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट बचेंगे उसमें से 12 को हम लोग सीट्स दे देंगे। ओके, तो वी आर कंडक्टिंग फॉर एससी ऑल्सो। सो ये बता रहा है कि हमारे पास पेज है, हमारे पास कहता है इस कैटेगरी के लिए अगर वो पहले वाले ऊपर वाले होते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप को ठीक है, इफ़ यू वॉश टू कंटिन्यू द प्रोसेस तो कर सकते हैं इसको एसए के कोटा या सब कुछ करने के बाद में। ठीक है, देन सिमिलरली एसटी के देख लेते हैं बच्चे कितने हैं। इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास 13 आई हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 हैं। ओके, सो इसमें भी देख लेते हैं हमारे पास कि क्या है, कितने हैं, किस चीज़ का है। अब इसमें कंडक्ट करने के बाद में सिमिलरली दे सेड कि अगर आपका कैटेगरी जो ऊपर आरटी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, पहले इसको परफॉर्म करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टू दिस कैटेगरी। उसको पहले फुलफिल कर लेना है, 6 सीट्स को पहले भर लेना है एससी एसटी ओबीसी का ना। अगर वो आरटी में आ जाते हैं तब इसको नहीं यूज़ करना। मतलब अगर हमारे पास 6 सीट्स एसटी का है और हमने देखा कि वो आरटी में 3 बच्चे आ गए, कैटेगरी 1 में 3 एसटी के बच्चे आ गए, देन हमें इसको नहीं छेड़ना है, बिकॉज वो उसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। ओके, तो हमें टोटल एसटी के 6 ही बच्चे लेने हैं इस सेक्शन में। अगर वो आरटी में 3 बच्चे आ गए हैं और कैटेगरी 1 में 3 बच्चे आ गए तो हमें इसको नहीं यूज़ करना। फिर इसको यूज़ तब करना है अगर हमारे पास मान लीजिए वहाँ 5 हुए, 1 सीट बचता है, तो इस लिस्ट में से पहले बच्चे को बुला लेना है। ओके, ये एसटी वाला आ गया हमारे पास। इस तरीके से देख लीजिए, ये सब वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, बिकॉज वो हो सकता है सारे के सारे उसमें आ चुके हैं। तो अभी इसने क्या किया है, ये जो एसटी के हैं सब बच्चे, मिथुन आपको बताया था, नाम पहले भी आया था शायद कैटेगरी उसमें भी, तो वो बच्चा ऑलरेडी कैटेगरी 1 में हो चुका है, तो अभी इसमें नहीं आएगा वो। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से एसटी वाली लॉटरी का रिजल्ट और इसको भी एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। देन एसटी के बाद में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आता है, उसको भी सिमिलरली इसी तरीके से करना है। तो उसमें करने के बाद में वी हैव टू बी, हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 22 और नंबर ऑफ सेक्शन इतने हैं, एप्लीकेशन 45 रिसीव हुआ था। ओके, तो वी हैव टू बी कंडक्ट सिमिलरली क्वेश्चन कि भाई वो नॉन क्रीमी लेयर में कितने बच्चे आते हैं। अब एक कैटेगरी 1 में भी बच्चा हो सकता है, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी रखा हो सकता है। उसका अगर कैटेगरी 1 में हो जाएगा तो फिर उसको यहाँ नहीं देंगे, ऑलरेडी आ जाएगा कि एडमिटेड अंडर कैटेगरी 1, तो फिर उसको नहीं हम करेंगे, उसके नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल करेंगे यहाँ पर। अगेन वी हैव टू कंडक्ट दैट लॉटरी, डाउनलोड किया, उसको एक्सपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद में सर्विस कैटेगरी 4। अब ये सब होने के बाद में अगर फिर भी हमारे पास कैंडिडेट कम बचते हैं, अभी सीट्स हैं, then we have to be go for category 4, 5 and 6. First we call a category 4 candidate, then category 5, then again category 6 अगर वैकेंसीज रहती हैं तो then इसका करके देख लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 13 सीट्स थी हमारे पास। कैटेगरी 4 मीन स्टेट के एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है, अगर इनका कोई आता है तो उसका करना है, और ये हमारे पास 13 सीट्स थी टोटल इसमें। इसको कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली बोल रहा है कि अगर ऊपर वैकेंसी रहती है तब इसको यूज़ करना है। तो ये आ गया हमारे पास, सब वेटिंग लिस्ट में है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी वो ऊपर यूज़ हो गई है। अभी पेरेंट्स जैसे ऊपर से रिजेक्ट करते जाएंगे देन वी कैन यूज़ देम। ओके, देन कैटेगरी 5 का है। कैटेगरी 5 में हमें कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है, तो कैटेगरी 6 पे वी हैव टू गो डायरेक्टली। देन कैटेगरी 6 है हमारे पास, टोटल नंबर 42 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था। अब हो सकता है इसमें से बहुत सारे बच्चे बीपीएल हो या आरटी के अंदर चले गए हो, तो वो बच्चों को हम लोग उसमें ही कर देंगे, फिर यहाँ नहीं आएंगे वो ऑलरेडी। तो इसको कंडक्ट करते हैं। जैसे इसको कंडक्ट किया, कंडक्ट करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर आरटी लॉटरी आ गया। इसको ये देख लीजिए, ये भी सब वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं बच्चे। तो अगर वहाँ ये डिनाई करते हैं तब हम लोग इनको यहाँ पर देंगे। तो इसका लॉटरी का कर दिया हम लोगों ने। कैटेगरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। उसके बाद में क्योंकि हमारे पास डिसेबल कैटेगरी में कोई था ही नहीं, तो इसलिए उसको हमने नहीं किया। अब लास्ट एक बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड का। ओके, तो ये कैटेगरी 6 का हमारे पास हो गया है। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड का लॉटरी है।
इसमें हमारे पास टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 7। एक क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 बच्चों को सिंगल गर्ल चाइल्ड को दे सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 4 है। ओके, तो 7 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों को ही मिलेगा। अगर वो बच्चा, इनकी चॉइस है, अगर वो कहते हैं कि हम लोग कैटेगरी 1 में एडमिशन लेना तो कैटेगरी 1 में ले सकते हैं। बट ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ये जो बच्चे जो हैं ये 80 से अबव है, मीन्स 80 + 4, तो ये अकाउंट नहीं होते फिर। ओके, तो ये सर 7 बच्चे हैं, इनका कंडक्ट कर लेते हैं लॉटरी हम लोग। तो ये बच्चे आ गए। अब जो पहला बच्चा है हमारे पास, उसको हम पहले कॉल करेंगे। ओके, सेकंड वाले को बाद में, बिकॉज इसमें कोई प्रोसेस में होता नहीं, चेंज नहीं होता है, बिकॉज हर क्लास में से वैसे ही आना है। तो इसको सिंगल गर्ल चाइल्ड को कर लिया और एक्सपोर्ट एज एन एक्सेल कर दिया। अभी आपके सामने ये हम लोगों ने सारी लेटरीज को परफॉर्म कर दिया। इसके अंदर करने के बाद में वी हैव टू टेक द प्रिंट आउट्स। और अगर आप देखना चाहते हैं, बिकॉज अभी वी कैन नॉट कंडक्ट RT लॉटरी ट्वाइस, अभी एक बार ही कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर दोबारा कर सकते हैं, अब यहाँ पर RT लॉटरी जो थी आप चेक करेंगे, पोस्ट शफल है ना, ये पोस्ट शफल का आ गया इसमें सर, ये आ गया लॉटरी का अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये सीरियल नंबर प्री वाले बता रहे हैं, ये पोस्ट वाले बता देंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का बता रहा है इसके अंदर। तो ये अभी अब प्रिंट आउट हम लोग ले लेंगे इसका, आप लोगों से साइन करवा लेंगे इस पे, सब पे हम भी करेंगे। आपके करने के बाद में हम लोग ED सर से भी करवा लेंगे। तो ED सर से साइन करवाने के बाद देन वी हैव टू बी अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे, और फिर 1 बाय 1 पेरेंट्स को जैसे एज पर गाइडलाइंस है वो कॉल करेंगे पेरेंट्स को। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट आउट के लिए भेज देंगे। अगर आपको कुछ और इसमें पूछना है तो स्टेट एम्प्लॉय का भी अभी मैं आपको सारी लिस्ट निकाल देता ना, अभी सभी लेके आपके सामने कर लेते हैं। ओके, बिकॉज यही लॉटरी हम लोगों ने सबने कंडक्ट करना था, ये कंडक्ट हो गया इस टाइम में। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि जैसे सर बोल सकते हैं कि सर एक बार आप दोबारा करके देखिए, कहीं दोबारा तो कंडक्ट नहीं हो जाती लॉटरी, है ना, कि आप लोग चले गए उसके बाद में वी हैव टू अगेन। तो हम यहाँ पर लॉटरी था हमारे पास, इस लॉटरी में RT लॉटरी दोबारा करके देखते हैं, क्योंकि हमने एक बार कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं करूँगा ना, तो ये बोल देगा कि भाई आप ऑलरेडी लॉटरी कंडक्ट कर चुके हो। ठीक है, अब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वो बटन भी नहीं आ रहा, अगर आप ध्यान देंगे ना, कंडक्ट लॉटरी वाला। अब क्या आ रहा है, सिर्फ कि आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले यहाँ पर कंडक्ट लॉटरी का एक बटन आ रहा था रेड कलर का, है ना। अगर आप डेमो वाले पे देखेंगे तो डेमो वाले पे 40 बार आ रहा है ये बटन, आप जितनी बार मर्जी कर लीजिए। लेकिन उसमें एक बार हमने कर दिया तो दोबारा उसको एक्टिव नहीं करेंगे वो, अभी ऑलरेडी हो गया। ये सभी मैं प्रिंट आउट के लिए भेज देता हूँ। आफ्टर दैट वी हैव टू साइन इट, एंड जो लॉटरी है वो आपको दिखा देते हैं अभी। ओके सर, दिस इज द एग्जैक्ट, है ना। ओके, बस सर 5 मिनट्स प्रिंट आउट लेके साइन करवा लेते हैं आपसे, है ना, विद इन 5 मिनट्स।